Ich habe, no, not done. Ja, sir. Du hast bis 10 Uhr kommen müssen. Aha. Du hast sofort das Buch lesen wollen. Perfekt. Okay. Next, wer ist noch da? Ja? Ja, sir. Ich habe nach Deutschland fahren können. Ich habe Cola trinken wollen. Meine Schwester hat schminken mögen. Noch einmal? Meine Schwester hat schminken mögen. Okay. Mein Bruder hat Zigarette rauchen dürfen. Ich habe große Firma arbeiten wollen. Ich habe bei großer Firma. Arbeiten wollen. Okay. Ich habe Deutsch sprechen müssen. Ich habe auf Deutsch sprechen müssen. Danke, sir. Perfekt. Noch jemand? Yash? Oder Singh? Herr Singh? Ich habe das Auto fahren Können. können. Ich habe die Cola trinken können. Können. Sie haben Das in das Kino. das Kino kommen können. Ja. Ja. Okay. Perfekt. Ich habe Englisch schon immer machen wollen. lernen wollen. Okay. Ich habe immer schon Englisch lernen wollen. Okay. Ich habe Fernsehen kaufen müssen. Ich habe Fernseher kaufen müssen. Ja, so sagt ein Vater. Ich habe Laptop kaufen müssen. Ich habe Laptop kaufen müssen. Ja. Okay, noch jemand? Also die Grammatik. Was wir hier lernen, sollte man einfach einige Sätze machen. Dann lernt man das besser. यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाए उसके सेंटेंस टीचर कहे नहीं कहे तो अपन को तो बनाना ही है. ऐसे मत कह देना सर आपने आप कहना भूल गए थे इसलिए नहीं बनाए. ऐसे मत बोल देना. राइट. जो Ausrede braucht man immer. Ausrede बहाना. Ausrede. Excuse. Ausrede. Also das war perfekt von Modal. Präsenz haben wir gelernt. Präteritum. Ja, haben Sie noch Sätze? Ich habe die Hausaufgabe machen müssen. Ich habe nicht ins Kino gehen dürfen. Dürfen, okay. Wir haben die Arbeit machen sollen. Sie hat die Pizza essen müssen. Ja. Du hast schwimmen gehen. Du hast, okay, No, schwimmen gehen. Schwimmen gehen wollen. Du hast schwimmen gehen wollen oder schwimmen gehen müssen. Okay, klar. Ja. Wir haben mit den Kindern spielen müssen. Wir haben mit den Kindern spielen müssen. Ja, die Kinder sind ja eben Kinder. Okay, noch jemand? Ist das klar? Ja, Begriff ist klar? Ja, bitte. yes, sir. Ich habe ein Haus kaufen wollen. Wir haben Cola trinken mögen. Ich habe ein Auto fahren wollen. Sie hat Deutsch lernen können. Ich habe die Schokolade essen mögen. Ich habe das Kino gehen mögen. In das Kino. Ich habe in das Kino gehen mögen. Ich habe eine Kleidung kaufen dürfen. Und ich habe der Tanzen dürfen. Ich habe
Der Tanz, देयर और डेन Den I understand. den Tanz tanzen dürfen. aha Ich habe so bekommen können. ich habe den Job bekommen können. Okay. Okay, bekommen müssen. Yeah, next. Where is dran? Yes, sir. Bitte. Sir, may I? Yeah. Mein Freund hat hier kommen können. Hier kommen können. Wir haben in die Disco gehen wollen. In die Disco gehen wollen. Wir haben nach Hause fahren sollen. Er hat Bier trinken dürfen. Sie haben die Sprache gut lernen sollen. Wir haben mit dem Zug fahren können. Du hast mit dem Aufzug nach oben gehen sollen. Und meine Frau hat zwei Fremdsprachen unterrichten können. Ja, perfekt. So, zweimal Infinitiv. Einmal das Verb, Normalverb und einmal Modalverb. Beide Infinitiv. Modalverb kommt am Ende. Ich habe das Handy kaufen wollen. Kaufen wollen. ओके अब जैसे आपने बोला ich habe das Handy kaufen wollen, आपके मुंह से अगर kaufen müssen निकल गया, आपके मुंह से kaufen sollen निकल गया, सब सही होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा, दैट्स इट. ओके ich habe das Handy kaufen müssen, ich habe das Handy kaufen können, kaufen mögen. kaufen dürfen. Ich habe die Tomaten kaufen dürfen. मतलब मुझे अलाउ हो गया है. ओके जय शॉन. Ich habe Deutsch unterrichten können. Klar. So आपके मुंह से जो निकल गया वही ब्रह्म वाक्य है, उसका बस मीनिंग भी आपको आना चाहिए. Sir, ich habe hier sitzen dürfen. Sitzen dürfen. Yes. Ich habe hier sitzen dürfen. आपने कुछ भी फेंका या सोच के बोला? सोच के बोला. वाह, मैंने सोचा ऐसे ही बोला है तो भी सही है. Ich habe hier sitzen dürfen. मतलब मुझे यहाँ पे अलाउ हो गया, राइट? एक फार्मूला लिखने के बाद याद आ गया मेरे को क्या बोलना है. यस, क्लियर. मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी लो, सब्जेक्ट होना चाहिए. सब्जेक्ट क्या हो सकता है? इश डू एर एस सी. अब इसकी जगह डू कर दो. जी हार्ट हियर ट्रिंकन क्योनन. ये तो दोनों इन्फिनेटिव है. ट्रिंकन क्योनन, गेहन म्यूशन इसमें जैन वर्ग का तो मामला है नहीं. है ही नहीं. इसका मतलब ये नॉर्मल परफेक्ट से भी इजी हो गया ये तो. अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तो नॉर्मल से भी इजी हो गया. नॉर्मल में आपको हाबन जाइन में दिमाग लगाना, यहाँ तो लगाना ही नहीं. ओके गुड. जो वंडरबार. Ich habe im Dorf gehen wollen. Ich habe Insdorf gehen wollen. Das Dorf होता है इसलिए Insdorf. या परफेक्ट. सोच के बोला है ना, सही है. डोंट वरी. Ich habe das Auto kaufen wollen. ओके लोकेश. डू दोनों साफ में. लोकेश, कल्पना, से समथिंग. I already said, sir. Okay, yes. Okay, I thought it's open your mic. Okay, can't problem. Lokesh, do you have some sentence? Yes, sir. Say something. Sir, ich hätte studieren sollen. हैटे का भी सिखाया नहीं है, उस पर चुप रहना. हार्ट बोलना है अभी. Heart. Okay. ये गलती Sir, से इस हैटे ना- निकल गया. नहीं सर, हैटे ही बोला था मैंने. हैटे क्यों बोला था? फिर समझाओ क्या बोला है तुमने. मैंने तो सिखाया नहीं. क्या मतलब है उसका? होता सर तो मुझे है. स्टडी करनी चाहिए थी. आप तो हार्ट से ही बोल लो अभी. सेकंड पोजीशन पे अच्छा, हाबन का सर. देखो. सर इस हार्ट. ओके Ich सर, इस habe- हार्ट. Ich habe Studieren sollen. studieren sollen. इस हाब सॉरी. इस हाब स्टूडियन जोलन. और सर इस हाबे इम डॉर्फ वोनन जोलन. Ich habe im Dorf wohnen sollen. बहुत बढ़िया. Good. Yes. That's correct.
काउफन क्योनन, काउफन ड्यूरफन, काउफन जोलन, सब सही है। आपको पता होना चाहिए आप क्या कह रहे हो, बस दैट्स इट। मन में खुशी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, क्या पता क्या बोल दूं मैं। क्या बोल दोगे? सही बोलोगे, चिंता मत करो। Ich habe सर इस habe zu Hause bleiben sollen। zu Hause bleiben sollen, बिल्कुल सही। Ich habe dich stoppen können, या ओके। सो das war ein Begriff, ये कॉन्सेप्ट हम समझ गए। आज हम एक अलग कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, क्या दिक्कत है? गलत तो हो ही जाएगा। घर जाना चाहिए, घर नहीं जाऊं तो समझ जाओ। रूल तो ये है कि घर जाना चाहिए। तो रूल तो डबल इन्फिनेटिव का है। कोई बोले नहीं करो तो मत करो, ये सीख तो ऐसे ही करना पड़ेगा। सर इसमें जो निष्ठ लगेगा वो मोडाल के आगे लगेगा या इन्फिनेटिव से पहले लगेगा? यहीं लगेगा। मोडाल के आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो फुल स्टॉप है। नहीं से पहले, मतलब मोडाल हम मोडाल से पहले करते इन हैं। दोनों के बीच में कुछ तीसरी चीज आ नहीं सकती, ये तो रूल है। इन्फिनेटिव वर्ब प्लस मोडाल इन्फिनेटिव, इनके बीच में कुछ आ ही नहीं सकता। तो सर निष्ठ हम कहीं भी लगा सकते हैं, हाबन और इसके बीच में। हाँ, इधर ही लगाना पड़ेगा। ठीक अब है आपने सर। बोला नेक्स्ट हम कहीं भी लगा सकते हैं क्या? चलो, आपको जिसको कुछ समझ में नहीं आए ना, उसको निष्ठ वर्ब के बाद में लगा लेना है, नॉर्मल वर्ब के बाद में। जिसको कुछ समझ में नहीं आता है उसको भी, मतलब वर्ब के बाद में, वर्ब का मतलब जो वर्ब कॉन्जुगेट करते हो उसके बाद में निष्ठ लगा लो नॉर्मली। और किसी को अगर ये रूल पता चल गया है कि भाई A2 में भी किया था कि डेफिनेट के बाद में, डेफिनेट अगर नाउन दे रखा है कहीं पे तो उसके जस्ट बाद में निष्ठ लगा सकते हो। डेफिनेट नाउन, एडजेक्टिव मत घुसे हो बीच में। डेफिनेट नाउन नहीं बोला मैंने, मेरे मुंह में और डलवाओगे। डेफिनेट नाउन के बाद में निष्ठ, नॉर्मल वर्ब के बाद में निष्ठ। अगर प्रीपोजिशन आ रही है तो प्रीपोजिशन से पहले निष्ठ। इन केस ऑफ प्रीपोजिशन उसके पहले निष्ठ। एंड अगर पेज स्वाई है, उसके पहले। पेज स्वाई है तो उसके पहले निष्ठ। और इनमें मान लो कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है आपको कि पेज स्वाई भी है, डेफिनेट नाउन भी है, तो आपको राम सुजे वहां लगा दो, सही जाएगा। सही है, वर्ब के बाद में भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट के बाद में भी सही है। और बहुत बार तो ऐसे लगेगा कि दो दो चीजें मिल रही हैं वो। अब पेज स्वाई के पहले क्यों, बाद में क्यों नहीं, उसके बाद तो कुछ नहीं आता। इन केस ऑफ पेज स्वाई इज एट द एंड, फुल स्टॉप। तो उस रूल को तो बदल नहीं सकते। सो यू पुट इट बिफोर। क्ला जो इस टेस्ट मिट निष्ठ। Ich habe nicht Deutsch unterrichten wollen। Klar, ich habe Deutsch nicht unterrichten wollen। मैं जर्मन नहीं पढ़ाना, मैंने जर्मन नहीं पढ़ाना चाहा है, हैं? Ich habe das Auto nicht fahren müssen। Ich habe das Auto nicht fahren können। Ich habe das Auto nicht fahren sollen। Ich habe das Auto nicht fahren dürfen। सबके अलग मीनिंग है, सभी सही है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ऐसे नहीं आपके मुंह से कुछ बोल गए फिर करो यार मेरे को निकल गया। पता होना चाहिए, क्योंकि वो गाली भी हो सकती है। सो ist das okay? Unter Kontrolle? Yes, sir. Gut. Dann nehmen wir heute also Präpositionen. Nein, die normale Präpositionen haben wir schon. Wir nehmen Genitiv Präpositionen. Okay? Genitiv Präpositionen. Normale Präpositionen können wir schon. Akkusative Präpositionen können wir jetzt. Dativpräpositionen können wir jetzt. Wechselpräpositionen können wir jetzt. Und Genitivpräpositionen lernen wir heute. Wie viele Präpositionen gibt es hier? बेफुडोगे।
Be Befudoge. Doge. Entlang, gegen, Gegen. Ohne für, für bis, Bis. durch, Durch. gegen, gegen, in Dative Präpositionen, wie viele haben wir gelernt? Bemannungsatzer, Bemannungsatzer. bei, By, mit, aus, nach, Nach. von, Seit. ab, Ab. Gegenüber. über, zu, zu, an, vorbei, an, Vorbei. Wie viele sind Wechsel? Patsu, nein, Nein. was zu nein, Patsu, nein, Fa, I. über, über, in, Auf. an, neben, Neben. Unter. unter, hinter, Hinter. hinter, zwischen, Zwischen. Auf. auf, auf, Vor. vor. diese können wir schon. Wenn Sie das nicht können, sollten Sie mal German Speakers Club बुकन. अगर किसी को लगता है कि ये आन फॉर बाई मैंने शायद कुछ भी किसी में भी आपको डाउट लगता है तो जर्मन स्पीकर्स क्लब में एक बार चेक कर लेना. Da habe ich auch erklärt. Okay. Hier Wechselpräpositionen. Wie viele sind da? Also Wechsel haben wir gemacht wegen viele. Sehr viele. हाँ? मतलब वेगन ये वेगन लिख दिया मैंने यहाँ पे गेनेटिव. वेगन तो खुद एक प्रीपोजिशन है. गेनेटिव प्रीपोजिशन जो गेनेटिव प्रीपोजिशंस है वो इतनी है, इन सब से ज्यादा, इन तीनों को मिलाने से भी ज्यादा है, बट हमको नहीं करना. कॉन्ग्रेचुलेशन. वी आर लर्नर नोर फियर. वी आर लर्नर नोर फियर इन B1 und wir machen keine Sorgen. Wegen स्टार्ट और अनस्टार्ट, वो स्टार्ट नहीं है ये. वेगन का मतलब है बिकॉज ऑफ. गेनेटिव प्रीपोजिशन सीखने से पहले एक चीज तो आपको पता होगी, आपने पर्सनल प्रोनाउन सीखे ना. Yes. इश, mich, Beş, Mehr. du, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, Akkusativ, दाटिव एंड गेनेटिव. Genitiv. Genitiv नहीं सीखा, इश, डू, नहीं एयर, सीखा. एस, जी, वियर, ईयर, Ihr, sie, जी, sie, Du. dich, बियर, ihr, ihn, in, es, es, ihm, ihm, sie, ihr, sie, ihr, ihr, uns, 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 euch, ihr, euch, sie, ihnen, sie, ihnen, sie, sie. ये वाला आपने नहीं सीख रखा क्या गेनेटिव? मुझे, वो तो पॉजिटिव है. माइंड आइन तो Genitive नहीं सीखा. गेनेटिव एंड डाटिव आर सेम. अच्छा. मियर, कितनी अच्छी बात है ना. हाँ खुश सर. तो बहुत हो रहे हो. Yes, sir. इम, ईयर, उन्स, अच्छा. ओइश, ईनन, ईनन. ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा. यस, गेनेटिव भी आता है आपको. सो नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव, गेनेटिव. अब कोई सोच रहे होंगे अभी तो और आएगा, और कुछ नहीं आएगा, हो गया है. नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव एंड गेनेटिव. 4. देखो बैकग्राउंड नॉइस, बोलना मत इनको, अपने आप ही सोचने देना, बोलना मत कोई. ओके. सो गेनेटिव की जरूरत कब पड़ेगी? जब गेनेटिव केस होगा तब पड़ेगी.
जब गेनेटिव प्रीपोजिशन होगी तब पड़ेगी। अब मुझे इसकी याद क्यों आई? क्योंकि मैं ये बोलने वाला था अगला सेंटेंस, तुम्हारे कारण मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तुम्हारे कारण, तो Because of you. यू बोलने हैं तो डू थोड़ी बोल दूंगा। गेनेटिव के बाद तो गेनेटिव आएगा, तो मैं बोलूंगा वेगन डियर, तुम्हारे कारण। Vegan dear. तुम्हारे कारण मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, लेकिन तुम्हारे कारण ही मैं कैमरे के सामने हूं, तो अच्छी बात भी है। तुम वेगन डियर बिनिश फॉर कैमरा होगा ना गेनेटिव। जब आपको बोल दिया कि वेगन जो है वो गेनेटिव है, सो वेगन का मतलब है बिकॉज ऑफ। वेगन, वेगन इज बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ यू वेगन डियर, वेगन डियर बिनिश हियर। तुम्हारे कारण मैं यहां हूं, तुम्हारे कारण एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे कारण वेगन डियर इस्ट डेर उनफल पासियट, तुम्हारे कारण मैं फेल हो गया, वेगन डियर बिन ich durchgefallen, वेगन डियर बिकॉज ऑफ यू आई हैव गॉट द जॉब, थैंक यू। वेगन डियर habe ich diesen Job bekommen, because of you, vegan dear, vegan dear. So now this is a preposition, you should know, and after preposition there is prepositional noun or pronoun. Here it is pronoun, so this is called prepositional pronoun. So with this preposition, prepositional pronoun will be there and they are connected, they are actually one. इनको दो मत गिनना, बिकॉज ऑफ यू ये एक ही चीज है, अलग थोड़ी होगा। जैसे कोई बोले मिड डेम आउटो, तो वो एक ही चीज है, इस फारम मिड डेम आउटो। अब मिड के बीच में कुछ और थोड़ी घुसेड़ सकते हो। सपोज यू से मिड डेम आउटो, मिड डेम आउटो, सो दिस इज प्रीपोजिशन एंड दिस इज प्रीपोजिशनल नाउन, ऑल टुगेदर दिस इज वन एलिमेंट, दैट्स करेक्ट, दिस इज वन एलिमेंट। हेलो, या दिस इज वन एलिमेंट, तो ये एक साथ ही आएगा ये एलिमेंट। नाउ इट्स अप टू यू, यू कैन पुट दिस एलिमेंट इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और एट द एंड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी हैवन फ्लेक्सिबिलिटेट, डॉइच इज फ्लेक्सिबल। सो ये कहीं भी लिखो आप, ये प्रीपोजिशन के कारण पूरा एलिमेंट साथ रहता है, तो इस प्रीपोजिशन के कारण भी साथ ही रहेगा। So shown, vegan deer vanish here. You can also say ich bin here vegan deer, या फिर ich bin vegan deer here, no problem. So einfach vegan because of your brother, तुम्हारे भाई के कारण। vegan dinus bruders, des वाला गेनेटिव, वेगन डाइनस ब्रूडर तुम्हारी मम्मा के कारण, वेगन डाइनर मूटर तुम्हारी मम्मी के कारण। यार लड़ाई हो गई हमारे घर में, है वेगन डाइनर मूटर, तुम्हारी मम्मा हम लोग अच्छा खाना, वेगन डाइनर मूटर, इस डांग के ईयर हेल्पलेस, वेगन डाइनर मूटर, क्यूनन wir das schaffen. So vegan ist Genitiv Präposition und dann kommt Präposition, Präpositional Pronomen auch demgemäß. So, das war's. Diese Präpositionen brauchen wir nicht. Wir sprechen über Genitivpräpositionen. Vegan. Exceptional case. Sometimes people also use dinat vegan, minat vegan. ये कभी कभारी ऐसा दिखेगा नहीं आपको, बट दिखे तो आप मुस्कुराना बस एक बार, अच्छा ये वो है, ऐसे करके। डाइनट वेगन, माइनट वेगन, ईयरट वेगन, जाइनट वेगन, ऐसे एक और भी यूज होता है। इसका मतलब भी है तुम्हारे कारण, डाइनट वेगन, मैं तो तुम्हारे कारण आया हूं। डाइनट वेगन बिनिस, तुम्हारे कारण का मतलब हो सकता है तुम्हारे लिए। डाइनट वेगन, वेगन डियर भी बोलोगे तो वही बात है, बट डाइनट वेगन, माइनट वेगन भी बोलते हैं।
जो आपको रेयरली दिखेगा कहीं पे, नॉर्मली नहीं दिखेगा. यू शुड से वेगन डियर, वेगन मियर, वेगन डाइनेस ओंकल्स. Das muss man im Kopf haben. Nein, nicht so. Wir brauchen das hier. तो इसमें फिर वो नहीं आएगा क्या सर? प्रीपोजिशन नहीं आएगा इसमें डायनेट आने के बाद? इसके बाद में ये बात ही खत्म होगी. यहाँ पे डाइनेट वेगन का मतलब ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण. वेगन डियर का ही काम करेगा डायनेट. यस, वेगन डियर का ही काम करेगा डाइनेट वेगन, माइनेट वेगन, वेगन नियर. सो इन केस आई विल राइट ओनली गेनेटिव केस हियर. बाकी लिखने की जरूरत थोड़ी है. डेर दी, दास दी, या पूरी लिखो, मान जाओगे? नहीं सर, ओके. गेनेटिव खाली लिख. सर क्यों सजा देते हो? ओके, राइट. डेस, डेयर, Des, des. डेयर. सो इफ डेस इज देयर, देन Yes, sorry. एस और ई एस. हियर नो. Nothing. No. Here Nothing. S. Yes, sorry. Yes. Here no. But suppose it is ein, then einus. Minus. Yes. Minor. Minus. Minor. Plural में तो No कुछ होगा plural. नहीं. Plural नहीं है. Masculine, feminine, neutral. Okay. Suppose minus, minor, Minor. 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 None. Minor. Minor. जाइन भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, ईयरस पजेसिव वाला सभी हो सकते हैं. सभी हो सकते हैं. ईयरर. सर सब मत लिखो, ठीक है? सब नहीं लिखूंगा. ईयरर. सर हम समझ गए. ओके. जाइनस, जाइनर, जाइनस, जाइनर. Klar. Und das kommt dann am Ende auch so. Next. Das sollten Sie im Kopf haben. Und auch Genitiv. Also vegan because of. Meaning is because of. Because of you, because of the lady, because of lady. Vegan because of the lady. Vegan dieser Frau. Ja, wegen der Frau. Because of the man. We got Vegan. Des. vegan. Des. Des man. Dem man. Genitive है ना? Desmond. Vegan des Mannes. Is Manas के Manas. कारण? Manas ना? हाँ. Vegan des Manas. Mannes. Yes. Vegan because of the lady. Vegan. या vegan der Frau. Simple. Der. Feminine में. See der. अब दीजर हो तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर दीजर आ जाए सपोज, तो दीजस, दीजर, दीजस, दीजर. या सो वेगन डेयर फ्राउ. तुम्हारी सिस्टर के कारण हमको ये घर मिल गया. प्रेजेंट परफेक्ट. तुम्हारी सिस्टर के कारण हमको ये घर मिल गया. Vegan der Schwester. Vegan der Schwester. वेगन Deiner. Wegen deiner Schwester. Haben wir Das Haus bekommen. bekommen. So, sister, this is one element, vegan deiner Schwester, and verb is on second position. You can also say, wir haben wegen deiner Schwester das Haus bekommen. You can also say, wir haben das Haus wegen deiner Schwester bekommen.
नो प्रॉब्लम। ये तो प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन तो कहीं भी आ ही सकती है। इश मिड आउट ऑफ हारिश, मिड आउट ऑफ हारिश नेस्ट, तो प्रीपोजिशन तो कहीं भी आए, वर्ब सेकंड पोजीशन पे आनी चाहिए। जो कितनी अच्छी बात है ना। इतनी फ्रीडम तो इंग्लिश में भी नहीं है। सो वेगन बिकॉज ऑफ ईस्ट वेगन क्लार, ये लास्ट में भी आ जाएगा सर, वियर हावन दास हाउस वेगन डाइनर पेज 5 तो लास्ट में आता है महाराज, पेज 5 तो लास्ट में आता है, उसको तो माफ करो। वियर हावन दास हाउस वेगन डाइनर यस्टरडे होगा या क्ला। सो गोल्डन रूल्स, और इसका एक्सेप्शनल कभी कभी ऐसे लोग यूज करते हैं, आपको याद नहीं रही तो इसको भूल जाओ, रेयरली कभी दिखता है, और ना दिखे तो देखना ही मत, छोड़ो ना। मैं तो इसलिए लिखवा देता हूं ताकि कल को कोई पूछे, मैं बता दूं। नेक्स्ट, वेगन जैसे इजी है एकदम से, ऐसे स्टार्ट है एक, स्टार्ट कुछ लोग तो इसको अनस्टार्ट भी बोलते हैं, एक ही बात है स्टार्ट और अनस्टार्ट। वेगन स्टार्ट, ट्रोस्ट एंड वेरेंट, these 4 genitive prepositions we are going to learn. Vegan is because of, start means instead of, and it is in spite of, instead of, during, के दौरान, ड्यूरिंग, इन स्पाइट ऑफ का मतलब के बावजूद, इंस्टेड ऑफ की जगह, की बजाय, और इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ, के कारण बताते हैं उसमें हमेशा हम लोग। फोर वर्ड्स, 4 सर प्रीपोजिशन। स्टार्ट लिखे तो भी चलेगा क्या? नहीं, अनस्टार्ट लिखना है। दोनों ही एक ही बात है। कुछ लोग केवल स्टार्ट बोलते हैं, कुछ लोग केवल स्टार्ट लिखते हैं, दोनों इसलिए लिख दिया कि ये दिखे तो भी वही मतलब है, ये दिखे तो भी। कई लोग कहते हैं अनस्टार्ट थोड़ा फॉर्मल लगता है, ठीक है, ओके सर। बात एक ही है, अनस्टार्ट और स्टार्ट। इंस्टेड ऑफ दिस मतलब आप एक चीज की बजाय दूसरा, इसका मतलब है शायद एक चीज को रिजेक्ट कर रहे हो। यार तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई ठीक है, मैं तो तुम्हारे भाई को लूंगा, जॉब मेरे पास एक ही है, तुम आ जाओ या तुम्हारा भाई, दोनों को 2 दिन काम करा के देखा, एक काम चोर निकला, एक बहुत सही निकला, मैंने कहा तुम्हारा भाई ठीक है, तुम्हारे बजाय तुम्हारे भाई को लूंगा। सो स्टार्ट डियर आएगा क्या? डियर ही आएगा, क्योंकि डाटिव और गेनेटिव तो एक सही है। तो स्टार्ट डियर, Arbeiter ist mit deinem Bruder, okay, nehme ich deinen Bruder, start dear instead। कोई अनस्टार्ट डियर लिखे तो भी एक ही बात है। मैं तो मैथमेटिक्स ले लेता हूं जर्मन की बजाय, अरे नहीं ले मत लेना, स्टार्ट डॉइच nehme ich Mathematik als Wahlfach, मैथमेटिक स्टार्ट डॉइच, जर्मन की जगह मैथमेटिक्स, गया काम से। स्टार्ट अनस्टार्ट, जयपुर की जगह पुणे चला जाता हूं, पुणे में ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो स्टार्ट जयपुर, फारिश नाक पुणे, अनस्टार्ट जयपुर, फारिश नाक पुणे, हो गया ना, अनस्टार्ट स्टार्ट। जिसको भी हम मना करते हैं
की जगह की बजाय स्टार्ट के बाद में जस्ट करा रहे हैं, स्टार्ट के बाद करा रहे हैं, वाइन की जगह हम बियर ले लेते हैं, तो स्टार्ट स्टार्ट वाइन, स्टार्ट स्टार्ट बियर होगा, स्टार्ट डेस वाइन्स, गेनेटिव नहीं भूलना है। ओके, स्टार्ट दिस वाइन, वाइन्स, स्टार्ट डेस वाइन्स। पापा की जगह हम लोग भैया को ले चलते हैं। पापा तो डांटते हैं यार बार बार घूमने के लिए, पिकनिक पे पापा को यही रहने दो घर, भैया को ले चलते हैं, डांटते हैं वो। सो स्टार्ट डेस फाटर्स, डेस फाटर्स मतलब वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगा, गेनेटिव प्रीपोजिशन है तो अपना गेनेटिव पन्ना तो दिखाएगी। स्टार्ट डेस फाटर्स, उबासी लेने के बजाय तुम एक काम करो, सो जाओ यार। स्टार्ट डेस गेनेंस, सोल्टेस्ट टू हियर स्लाफन। स्टार्ट मतलब की बजाय, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस। हम लोग 10,000 रुपए मिले, कुछ भी खरीद के लाओ, शादी में मर्जी तुम्हारी, सूट लूं तो उसके भी 8,000 लग रहे हैं, क्या लूं मैं? सूट की बजाय मोबाइल खरीद लेता हूं। सो स्टार्ट दिस अनसूक्स काउफेस आई नॉइस हैंडी। क्या गेनेटिव का तो होगा ही खेल, जो भी गेनेटिव की अपनी एस टेबल दिखाऊं वापस, हाँ वो वहां से काउंट हो रहा है, यस डेस हो रहा है। और अगर प्रोनाउन होगा तो वो डाटी वाला ही है, गेनेटिव भी। स्टार्ट डियर भी बोल रहा हूं मैं तुम्हारी जगह, चाय की जगह कॉफी ले लेते हैं। स्टार्ट डेस टेस्ट, स्टार्ट डेस टेस्ट नेमन वियर काफे की जगह की बजाय, यस You should study instead of play. इसका क्या होगा? बोलो बोलो। You should study instead of playing. तो कोई भी वर्ब है उसको नाउन मान सकते हैं ना अपन तो। Yeah. स्टार्ट डेस स्टूडियरंस, जोल्टेस टू स्पीलन, या स्टार्ट डेस स्पीलंस, Start des जोल्टेस टू स्टूडियरन। हर वर्ब अपने आप में नाउन है। ये सेंटेंस बनाओगे आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूं। तुम हंसने की बजाय इधर ध्यान दो। स्टार्ट डेस लाखन्स, जोल्टेस टू ऑफ द स्टूडियम कॉन्सेंटियरन। चुप रहने की बजाय बोलो कुछ। स्टार्ट डेस स्वाइगन्स, Start. स्वाइगन का मतलब है चुप रहना। स्टार्ट डेस स्वाइगन्स। ट्रोस्ट, ट्रोस्ट मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। बीमार है, जूस पिए बिना नहीं मानेगा। बीमार होने के बावजूद जूस पी रहा है, बर्फ का गोला खा रहा है। सो के बावजूद, ट्रोट्स डेर क्रांकहाइट, बीमारी के बावजूद। ट्रोट्स डेस फीवर्स, दास फीवर होता है इसलिए। ट्रोट्स डेस फीवर्स, ईस्ट एयर आइस कुगल, बर्फ का गोला, आइस कुगल है। सो बीमारी के बावजूद तो क्या होगा? बीमारी दी क्रांकहाइट होती है तो क्या होगा? देर क्रांक, डेयर क्रांकहाइट। Krankheit. हाँ ट्रोट्स देयर क्रांकहाइट, ईस्ट एयर आइस Ice. मानेगा नहीं यार। ट्रोट्स डेस फीवर्स, फीवर के बावजूद। आइस गूगल मतलब सर बर्फ का गोला, आइस कुगल, या आइस ही बोल दो, आइसक्रीम खा रहा है यार। बारिश के बावजूद इंस्टीट्यूट आ जाता है यार, बारिश वाले दिन तो घर रुक जाया कर, हमको ही आराम मिल जाए। सो ट्रोट्स
रेगन डेर रेगन होता है तो क्या होगा? Days. Des Des Regen. Regan. ट्रोथ्स डेस रेगन्स, Regans. डेस रेगन्स कॉम्ट एरसुम इंस्टीट्यूट। हाँ. ट्रोथ्स डेस रेगन्स कॉम्ट एरसुम इंस्टीट्यूट। या क्या स्टार्ट के भी एग्जांपल लिख दो। स्टार्ट डियर, हेल्फेइस डायनम ब्रूडर, तुम्हारी बजाय। स्टार्ट डियर, तुम्हारी बजाय तुम्हारे भाई की हेल्प करूंगा। स्टार्ट जयपुर की बजाय बेंगलोर जाऊंगा। स्टार्ट सर जयपुर। ये भी सिमिलर है ना कि हम स्टार्ट डियर को बीच में या लास्ट में लिख सकते हैं। रिपीट करो वापस से। सर जैसे हमने वेगन को कहीं भी सेट किया था, मतलब वेगन डियर एक साथ आया था, सिमिलरली हम इनको भी कहीं बिल्कुल। और लिख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसे बोलो, इश हेल्फ डियर स्टार्ट डाइनस ब्रूडर्स। फिश हेल्प डियर डियर स्टार्ट स्टार्ट। डाइनस लेकिन सर ब्रूडर्स। स्टार्ट डियर तो बाद में आया था, अब डियर स्टार्ट बोल रहे हो। इश हेल्प स्टार्ट डियर या इश हेल्प डियर स्टार्ट? देखो क्या कहना चाह रहे हो आप, ये सोचो। जैसे अभी आपने वेगन में कराया था, वेगन डियर था तो वो वेगन डियर ही था, डियर वेगन थोड़ी था। नो, तो इसमें अभी आपने कहा इश हेल्प डियर स्टार्ट। मतलब उल्टी बात होगी, मैंने उल्टी बात कर दी। इसमें तो मैंने बोला स्टार्ट डियर, तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारी हेल्प करूंगा, और बाद में मैंने बोल दिया तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारी, राइट? हाँ, इश हेल्प डियर स्टार्ट। आप तो नॉर्मल बोलो, इश हेल्प है डायनम ब्रूडर, डायनम ब्रूडर स्टार्ट डियर। स्टार्ट डियर। अब ये सेम बात हुई है। हाँ, यही कंफ्यूजन था, आपने उल्टा बोल दिया था। उल्टा बोल दिया मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि तुम्हारी बजाय और फिर बोल दिया तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो बात ही उल्टी होगी। बट पोजीशन में कोई चक्कर नहीं। सर काफी डिस्टरबेंस आ रहे हैं। डिस्टर्बेंस आ रहा है तो इनको समझाओ आप। स्टार्ट पुणे आर इज नॉट हैदराबाद, राइट? स्टार्ट पुणे स्नाक हैदराबाद। पुणे की बजाय मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट पुणे, स्टार्ट शोकोलाड है, काउ फिश, मिल्क शेक खरीदूंगा यार, शोकोलाड है। ओके, नेक्स्ट। ऐसे पिज्जा, ऑर्डर समोसा या रिस्टिश द हाबिन। सर ये ट्रेंड बार पर यूज करेंगे तो मिड एंड में, जैसे एग्जांपल स्टार्ट डियर नेमे इज डाइन ब्रूडर मिड, ऐसा होगा क्या? होगा, बिल्कुल मिड एंड में चला जाएगा। हाँ, लास्ट में जाएगा। ओके। ट्रोट्स्ट का मतलब है के बावजूद, ट्रोट्स्ट डेर क्रांकहाइट, ट्रोट्स्ट डेस रेगन्स, बारिश के बावजूद, अच्छा सोने के बावजूद, खाने के बावजूद, राइट, हेल्प करने के बावजूद, समोसे के बावजूद। और वेरेंट का मतलब है ड्यूरिंग, के दौरान। बारिश के दौरान मैं घर से बाहर नहीं निकलता, रूल बना रखा है बारिश के दौरान, तो क्या होगा? वेरेन डेश रेगन। Days Regans. Regans. आउस के Gehen. Ist Nicht. aus. Aus. सेपरेबल का ये पार्ट तो लास्ट में ही रहेगा ना,
अगर इससे स्टार्ट कर दें तो भी लास्ट में रहेगा ना। यस, इश गे है वेरन डेश रेगन्स निस्ट हाउस, या फिर इश गे है नेस्ट वेगन डेश रेगन्स वेरन डेश रेगन्स हाउस। सर वेरेंट में एच लगाया है इधर, आपने ऊपर नहीं लगाया। ऊपर भी लगाना चाहिए। वेरेंट, वेरेंट के दौरान आएगा, या के दौरान। मैं खाने के दौरान बातें नहीं सर वेरिएंट को मिडिल में तो ले सकते हैं ना। बोल के बताओ सर नॉर्मल सेंटेंस बनाइए वेरिएंट। सर वेरिएंट बीच में भी आ सकता है, सर जैसे कि इश्कान वेरिएंट, मैं सर जैसे इश्कान वेरिएंट देर पार्ट निस्ट डेस हैंड एक्सप्रेशन, या इस एक्सप्रेशन वेरन या वेरन डेस एसेंस निस्ट। खाने के दौरान मैं बोलता नहीं, खाने के दौरान मैं बोलता नहीं। अच्छा एक्सप्रेशन निस्ट इसके योग इश्कान वेरिएंट डेस एसन निस्ट एक्सप्रेशन, इस डार्फ वेरन डेस एसेंस निस्ट एक्सप्रेशन, नो प्रॉब्लम। इश सर बाइंग का मतलब ही ड्यूरिंग होता है। वही होता है, बिल्कुल सही, एक ही बात है। इश डार्फ देखिए सर, वेरन डेस, एक ही बात है। इस डार्फ वेरन डेस एसेंस निस्ट एक्सप्रेशन, मोडाल का रूल है भाई, दूसरी वर्ब तो लास्ट में आएगी, तो नो प्रॉब्लम। सर ये हो सकता है इश ऐसे डेस आइसिस वेरेंट ये डेस कार्ट आइसिस, वेटर। ये डेस आइसिस किस कारण से किया है? दास आइस होता है ना सर। हाँ, आई ईट आइसक्रीम ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। दोबारा बोलो। इश ऐसे डेस आइस, डेस नहीं, दास आइस। दास ही होगा। हाँ, गेनेटिव थोड़ी हो रहा है उससे। वेरिएंट लगने के बाद वेरेंट के बाद होगा जब वेरेंट के बाद यस, गेनेटिव तो तो सब- गेनेटिव के बाद होगा ना। गेनेटिव प्रीपोजिशन यूज करने के बाद ही तो इफेक्ट आएगा के उसका। बाद इश ऐसे दास आइस वेरेंट, आगे आगे बोलो, क्या पता क्या सोच रखा आपने। सर आप ही बोल। बोला थिंकर, वेरेंट बोला स्ट्रिंग, क्या मैं बहुत Artist, कंफ्यूज writers. हो रही हूँ सच में। नहीं सेंटेंस खूब सारे बनाएंगे। देखो कंफ्यूज होने की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। मैं तो बहुत सारी ग्रामर ले ही नहीं रहा, एक ग्रामर लिया आज, एक कर ली थी। खूब सारे सेंटेंस बनाओ। इश ऐसे दास आइस वेरेंट Caltes vetus. काल्कस वेटर। ओके, वेरेंट डेस। देश देश का बोला ट्रिंगन। इन्होंने देखो अभी इन्होंने एडजेक्टिव और यूज करने की कोशिश करी है। ध्यान से सुनो इनको। जो एडजेक्टिव यूज करने की कोशिश करेगा तो एडजेक्टिव में हमेशा en एंडिंग लगेगी। अच्छा, समझ रहे हो? एडजेक्टिव अगर आएगा गेनेटिव के बाद में तो en एंडिंग लगेगी। जैसे इन्होंने बोला कार्ट, तो आएगा डेस्काल्टन। अगर मान लो कि बारिश है, तो बारिश है तो ट्रोथ्स डेस्ट, क्या है इधर, रेगन है तो स्टार्क होता है, तो स्टार्कन हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, तेज भी होता है। ट्रोथ्स डेस्ट डेस नहीं स्टार्कन। लगाया, हाँ, डेस नहीं लगाया था तो काल्टेस हो जाएगा, काल्टेस वेटस। तुम्हारे लगाने से चलेगा क्या काम? रूल तो रूल है। नहीं सर, आप आस्किंग कि डेस नहीं लगाया तब क्या होगा? नहीं, लगाना पड़ेगा। ओके वेरेंट होगा तो लगाना ही पड़ेगा। गेनेटिव है ना, ओके। गेनेटिव सर ओके, अगर बात। मतलब देखो जैसे गेनेटिव का आप इसको समझो। गेनेटिव अगर गेनेटिव यूज कर रहे हो तो डैश नहीं लगाओगे तो डीजेस लगाओगे, ये नहीं लगाओगे तो ये लगाओगे, कोई तो लगाना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने कर दिया सिर्फ आई ईट आइसक्रीम ड्यूरिंग कोल्ड, हमने वेदर लगाया ही नहीं। जैसे ठंडी होती है तो हम आइसक्रीम खाते हैं। तो अब आप इसमें उसको भी नाउन बनाओ। नाम बनाते हैं। हाँ। नाउन बनाना पड़ेगा आपको। एडजेक्टिव एवरी वर्ब जब नाउन बनता है तो दास हो जाता
क्योंकि ये तो आर्टिकल के हिसाब से ही चलता है ना, इसको समझने की कोशिश करो। आर्टिकल है ना ये तो। हाँ, तो आर्टिकल तो चाहिए ना उसके लिए। ड्यूरिंग द कोल्ड में क्या हो जाएगा? वेरन डेस काल्टस। काल्टस। हाँ, कोई भी एडजेक्टिव को नाउन बनाते हैं तो दास आर्टिकल ले लेता है वो। दास आ जाता है। हाँ। दस गुट है, यस ठीक है। और जब हमने पीछे वेदर लगाया था तो कोल्ड वेदर में कोल्ड हमारा एडजेक्टिव था, तो कार्टन। कार्टन हो गया और वेटर्स रहेगा। वेटर्स आ जाएगा। बस ठीक या है सर। वेगन डेस कार्टन वेटर्स। क्लार। यस सर। ये एस या ई एस कब लगता है भाई? सिंगल सिलेबल। सिंगल सिलेबल वाले में सिलेबल सिंगल सिलेबल सिंगल सिलेबल। ईएस लगेगा। ईएस। Yes. सिंगल सिलेबल वाले में ईएस, या फिर जिसके एस एंडिंग हो, एस साउंड से, तो ईएस। यस अदरवाइज ओनली एस। बड़े बड़े वर्ड में एस लगेगा, छोटे छोटे वर्ड में ईएस लगेगा, ऐसे सिंगल सिलेबल में। सो इसको एंजॉय करो, कुछ सेंटेंसेस बनाओ और अपनी ऐप जो है, ऐप के पूरे भरपूर मजे लो, वहां पे लिखो सेंटेंसेस।